Hello friends, we are back with another edition of the Hindu analysis. I am Ritesh Agrawal from CLAT Prep and let's start today's analysis. So the first thing which you will see in today's Hindu is this article which says that government dismisses snooping charges. So snooping or spying charges were leveled on the government by the opposition, and they say that the government has used a software called Pegasus to spy. This was a report published by The Wire that the government has used this software called Pegasus to spy on certain journalists and certain ministers, but the government has categorically denied it in the Supreme Court yesterday and said that these charges are baseless and based on uncorroborated evidence. Okay, the opposition obviously is not satisfied. So let's as we discussed, the government has denied these as mere conjectures and surmises based on unsubstantiated media reports. Now let me tell you more about Pegasus. थोड़ी और बात करते हैं Pegasus के बारे में. Pegasus is a software made by an Israeli company called NSO, and ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस करके आपका जो भी डेटा है वो मास्टर सर्वर में शिफ्ट कर देता है विदाउट एनी ऑथराइजेशन. ओके, so you don't need to, sometimes you don't even need to click on any link. Okay, so we often feel कि अच्छा I will not click on any doubtful link and I'll be safe, but in certain cases you don't even need to click. Okay, and they can take the data from your phone, which includes messages, emails or anything. So Pegasus software इसलिए इस समय न्यूज़ में है. Okay, no opposition parties in Nagaland Assembly. Okay, तो नागालैंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है. What is the development? That the only opposition party has now been incorporated into the ruling party. ठीक है. Who is the chief minister of Nagaland? Can you tell me? The chief minister is Mr. Neiphiu Rio. ठीक है. और उनकी जो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, उस पार्टी में नागा पीपल्स फ्रंट विच वॉज द ऑपोजिशन पार्टी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, वो पार्टी अब उसमें मिल गई है एंड नाउ द न्यू पार्टी विल बी कॉल्ड नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट. ओके, सो द 60 member Nagaland Assembly is now having only one party, no opposition at all. ठीक है, चलो let's look at the next update for today. Okay, this is very interesting. In Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh State Law Commission has come up with a draft for two-child policy. ठीक है, so this has been very controversial. काफ़ी बात इस पर हो चुकी है, काफ़ी डिस्प्यूट, काफ़ी कंट्रोवर्सी इसके अराउंड हुई है और अब फाइनली ये ड्राफ्ट बिल हमारे सामने है. द कमीशन बेसिकली अपलोडेड द ड्राफ्ट for suggestions 1 month back, and it has received support from majority of the people who have suggested or voted for the bill. Now as you can see, 8200 of the 8500 suggestions were in support of the bill. तो क्या है ये टू चाइल्ड पॉलिसी बिल? व्हाट इज़ दिस टू चाइल्ड पॉलिसी बिल? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिल जिस पैनल ने सजेस्ट किया उसके चेयरपर्सन का नाम है जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल. ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं क्योंकि यूपी के सीएम का नाम भी योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द पैनल जिन्होंने ये टू चाइल्ड पॉलिसी की है. अब टू चाइल्ड पॉलिसी जैसा कि नाम से पता चल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए. ठीक है, सो बेसिकली आइडिया ये है कि जिनके बच्चे 2 या 2 से कम हैं, ठीक है, फॉर दोज पीपल द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सर्टेन इंसेंटिव्स. ओके, और जिनके बच्चे 2 से ज़्यादा हैं ऑब्वियसली उनके लिए कुछ डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ उनके लिए पीनल प्रोविजंस हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव मोर देन 2 kids then you cannot contest local body polls, you cannot get government subsidy. ठीक है, you will not be able to apply for government job or receive any kind of government scheme benefit like PDS or anything like that. तो ये सारे प्रोविजंस उस बिल में एटलीस्ट ड्राफ्ट में है. अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, जस्ट द ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड एज ऑफ नाउ. ठीक है, अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ़ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट,
तो you get additional benefits if you follow the two child policy. If you have only 2 kids or 1 kid, you will get additional benefits like a 3% increase in employers contribution fund. You will get, if you have 2 kids, you will get 2 additional increments. If you have only 1 kid, you will get 3 additional increments. ठीक है. इसके अलावा फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी, इंश्योरेंस कवर फॉर स्पाउस. सो दीज आर द इंसेंटिव्स जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टू देयर एम्प्लॉइज. ठीक है, इफ दे हैव 2 किड्स और लेस. नाउ दिस इज, आई हैव जस्ट मेड अ टेबल. एक टेबल मैंने बनाया है आप लोगों के इजी रेफरेंस के लिए. तो इफ यू हैव 2 किड्स, दीज आर द बेनिफिट्स बीइंग ऑफर्ड इन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. इफ यू विल बाय अ हाउस, you will get a subsidy. If you will buy a house, you will get a loan on nominal interest rate, soft loans जिनको हम कहते हैं. ठीक है, you will get rebate on electricity charges, water charges, house tax, sewerage charges. ठीक है, and you will get free healthcare and insurance cover for spouse. और अगर आपके एक ही संतान है, if you have only 1 kid, तो आपको you will get some additional benefits. Okay, apart from these benefits, you will also get free healthcare and insurance cover to the single child till the age of 21 years. The kid will get preference in terms of government job and admission to schools. Okay, in case of girl child, you get scholarship for higher education. तो ये सारे benefits, all these benefits are offered for kids and you know, the applicant if you have 2 kids or less. So this bill is pretty interesting. You can read the draft bill online also. I have summed up the essential features on this particular screen. So all of you would have heard of Sharad Pawar. Sharad Pawar made a very interesting statement yesterday. He said that the government should remove the limit of 50% cap for OBC quota. Now what it says is that the central government has recently passed a bill where they have allowed state governments to make their own OBC list. तो यानी स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि अच्छा मेरे स्टेट में मैं कौन सी कास्ट को OBC मानता हूँ, कौन सी कास्ट को OBCs में लेकर आ सकता हूँ. बट द ओवरऑल कैप शुड बी 50%, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन लिमिट नहीं होनी चाहिए. तो दैट्स व्हाट शरद पवार इज कॉन्टेस्टिंग कि इन every state including Maharashtra ये 50% की लिमिट ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है. दिस लिमिट हैज ऑलरेडी बीन ब्रीच्ड. सो ही सेज दैट अ कास्ट सेंसस मस्ट बी हेल्ड which should give numbers that okay which caste is backward, and then this 50% reservation limit should be lifted. So states should not only get the autonomy in choosing that which caste should be classified into OBC, but you know that number of 50% should also be relaxed, and the party will work on those lines. That's what Sharad Pawar said. Now let's look at the new update. So Supreme Court raises query on tribunal reforms bill. तो ये बेसिकली है क्या? सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेश्चनड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल विच इट रिसेंटली पास्ड. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पास किया है, जिसमें गवर्नमेंट ने 9 एपिलेट ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया है, एंड दे हैव इंक्लूडेड सर्टेन प्रोविजंस विच वर अर्लियर struck down by the Supreme Court. So basically what the Supreme Court has asked is that they have asked for a justification. They have said that okay, we respect your decision, you can make a law in parliament, we are fine with it, but can you provide a reason or justification for why you have included those provisions which were earlier struck down by the Supreme Court itself. Okay, तो ये एक recent development हुआ है, and the government has to submit its reply कि why they have taken this step to include those provisions which were earlier struck down by the Supreme Court. एक और legal issue देखते हैं. So High Court has asked the government to respond that what it is doing about the data breaches. Okay, so this is a petition filed in the Delhi High Court by a person that Computer Emergency Response Team CERT in which is responsible to probe data breaches has done nothing in case of data breaches in consumer organizations like Big Basket, Domino's, MobiKwik, Air India, etc. ठीक है, तो ये सारे organizations में data breach हुआ because all of them have our data or names or phone numbers, sometimes our payment details. ठीक है, and all of them you know suffered a cyber attack, and you know the data breach happened. But what the government has done about it,
ठीक है, दैट्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड बाय द हाई कोर्ट कि आप लोग कर क्या रहे हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट, हैव दे टेकन एनी एक्शन, व्हाट इज देयर स्टांस, व्हाट द CERT इन इज डूइंग अबाउट इट. सो दैट रिस्पॉन्स इज बीइंग सॉट बाय द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट the next update for today. As you can see here, we have seen the summary of it. Zambia. Okay, so Zambia को लेकर के एक न्यूज़ आज आप फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्शन में देख सकते हैं. यू कैन सी दिस अपडेट इन द एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्शन वेयर दे से दैट हिचिलेमा, Haikande Hichilema is set to become Zambian president. He has won the presidential elections और ये जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट होंगे. ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेस टाइकून. नाउ सम पीपल माइट वंडर दैट ओके सर, वी हैव vaguely heard the name of Zambia. Where is Zambia? Okay, so let's figure out on a map where is Zambia. So this is a map of Africa. ठीक है, so Zambia is a landlocked country. Landlocked country मतलब चारों तरफ लैंड है. ठीक है, चारों तरफ it is bordered by other countries. So you can see to the west Angola is there, to the north you can see Congo is there, then to the south Zimbabwe is there. ठीक है, and then to the east there are countries Mozambique, Malawi and Tanzania are there. Okay, so it's a landlocked country in Africa, quite in the center of, towards the south of Africa, and it's a landlocked country. So you can see the update here. So Zambia, landlocked country in Africa, and Zambian business tycoon and opposition leader Hakainde Hichilema. Make sure that you keep a note of these names. I have highlighted them in a different color, and there is a reason, because I want you to make a note of these names, and these are important. So he has become the new president of Zambia. तो फ्रेंड्स, अब जो बात करेंगे वो एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आए आज के हिंदू न्यूज़पेपर में, जो आप देखेंगे तो कुछ जो शॉर्टलिस्टेड आर्टिकल्स हैं, विल टॉक अबाउट देम. सो द फर्स्ट वन विच वी कैन नोटिस इज हाउ तालिबान टुक काबुल विदाउट अ फाइट. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच a lot of people are asking that suddenly how Taliban took control of Afghanistan, and how it all happened. तो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो, एक अलग सेपरेट वीडियो भी हम प्लान कर रहे हैं और जल्दी आपके सामने होगा, in which we'll deal about all the aspects of Taliban, what is Taliban, what is the history around it, or what all happened till now, and what are the consequences for India and other countries. तो वो सारी बातें हम करेंगे. बट लेट्स लुक एट दिस आर्टिकल. इस आर्टिकल को थोड़ा समझते हैं. दिस आर्टिकल गिव्स अस द आंसर कि इतनी जल्दी तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कैसे कर लिया. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट पॉइंट इट मेंशंस इज ट्रम्प तालिबान डील. दिस डील हैपेंड इन February 2020 इन दोहा, कतर, जहाँ पर अमेरिका प्रॉमिस्ड कि we will withdraw our troops from Afghanistan, and in return Taliban will not nurture or support any terrorist activity. Okay, and this basically emboldened Taliban to regroup and reorganize itself in America, because now they knew that the America has made a decision to withdraw its troops. So this is the first thing which it mentions, because just after the deal another thing happened is that because US got into an agreement with Taliban, it stopped its airstrikes and reduced its airstrikes on Taliban, which was a major barrier for Taliban, which allowed Taliban to regroup. The Ghani factor. So Mr. Ashraf Ghani, the president of Afghanistan, so what it says is there is political instability in Afghanistan, and Taliban made use of the political instability, because अगर आप in the last two elections 2014 and 2019 there was not a clear verdict, and in fact United States had to stitch a government. ठीक है, तो अगर आप अफगानिस्तान गवर्नमेंट में देखें तो प्रेसिडेंट अशरफ घनी थे, एंड देयर वाज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, हिज मेन राइवल अब्दुल्ला. ठीक है, तो इट वाज अ गवर्नमेंट विच इज़ डिवाइडेड इट इन इटसेल्फ. ठीक है, तो जब आपके इंटरनल डिविजन्स होते हैं तो आप एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को फेस नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो.
Then American withdrawal. Once America decided to withdraw, it not only withdrew its troops but it also withdrew its intelligence agents, its contractors. और जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, दे वर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू अफगान वार प्लेन्स, अफगान एयरफोर्स. तो जब वो सपोर्ट चला गया तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान के पास जो एयरफोर्स थी, दे कुडंट फंक्शन प्रॉपरली. साइमल्टेनियसली तालिबान ऑल्सो स्टार्टेड किलिंग अफगान पायलट्स. तो एक तो पहले रिसोर्सेज नहीं है, फिर पायलट्स भी मारे जा रहे हैं, तो अफगान एयरफोर्स काम ही नहीं कर पाई. दे कुडंट अटैक एंड दैट वाज द बिग एडवांटेज विच अफगानिस्तान हैड ओवर तालिबान. अफगान की जो आर्मी थी या अफगान के पास जो फोर्सेस थी, उनके पास बड़ा एडवांटेज क्या था कि तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं थी, एयर बेसेस नहीं थी, उनके पास थे बट दे कुडंट यूज़ इट. क्यों? क्योंकि उनके एयर बेसेस डिपेंडेंट थे यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स पे, वो तो चले गए, राइट. So that was also a big thing. And then no fight. A lot of Afghan army groups, soldiers just surrendered. Why they surrendered? Because Taliban offered them a deal. ठीक है, आप हमसे fight ना करो, we will let you go safely. If you will fight, we will kill you. ठीक है. And now who wants to get killed for a government which itself is not sure what to do? ठीक है. तो वहाँ कोई लॉयल्टी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल लॉयल्टी थी नहीं, एंड दे वर गेटिंग अ सेफ एग्जिट. सो लॉट ऑफ देम जस्ट सरेंडर्ड, दे जस्ट हैंडेड ओवर देयर प्रोविंसेस कि ठीक है यार, हमें जाने दो, तुम्हें जो करना है करो. ठीक है. सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान. नाउ बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल which came in Hindu, and you should read about it. It's a very nice article, beating plastic pollution. It talks about the newly formulated plastic waste management amendment rules. ये 12 अगस्त को जारी हुए थे और इसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं. विल ऑल डिस्कस देम. ओके, द फर्स्ट वन, इट सेज दैट कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक गुड्स विल बी बैंड बाय जुलाई 1 नेक्स्ट ईयर. तो अगले साल से सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ना तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ना उसे बेचा जा सकता है. ठीक है. इसके अलावा जो हमारे प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं, द कैरी बैग्स हैव टू बी ऑफ, राइट नाउ मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ 50 माइक्रॉन्स, दे विल हैव टू बी थिकर, दे विल हैव टू बी एटलीस्ट 75 माइक्रॉन्स बाय September 30, 2021 and 120 microns by December 31 next year. So this will also reduce their harmfulness. ठीक है. इसके अलावा क्या है? So now it says that कि it just gives you an insight of कि हम कितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं. It says that 22 states have already banned single use plastic, but कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. ठीक है. India generates 34 lakh tons of plastic, 34 lakh tons, and only about 60% is recycled, which means 40% of 34 lakh tons is just polluting the environment. We can't do anything about it. Of the top 100 global producers of plastic, 6 are based in India. Imagine, 6% of top 100 global producers of plastic are based in India, and they are creating something which is environmentally harmful, right? उसके अलावा क्या हो रहा है? The government regulations are not enough. Government regulations are not stringent enough. They are not good enough. तो अभी भी जो हमारे म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर हम सेग्रीगेशन पे बात नहीं हो रही है. प्लास्टिक वेस्ट को अलग नहीं किया जाता है. ठीक है. और नहीं किया जाता है तो फिर उसे जला दिया जाता है, लीड्स टू इंसिनरेशन, या फिर वो कहीं पे वाटर बॉडीज़ को ब्लॉक कर रहा होता है. तो अब क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ ग्लोबल अवेयरनेस अराउंड क्लीनिंग ऑफ ओशियंस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू अडॉप्ट अ ब्रॉड बैन. द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अराउंड इट कि सिर्फ ये रूल्स जो हैं वो रूल्स बन के ना रह जाएं. समथिंग हैज़ टू बी डन ऑन द ग्राउंड. वी हैव टू अवॉइड पैची रेगुलेशन. वी हैव टू मेक a system to segregate and recycle plastic. That's what it talks about. So some really interesting numbers, some really interesting insights. So you can read this article. Okay, this is the main article in today's editorial, the message from the IPCC report. IPCC's Intergovernmental Panel on Climate Change. ठीक है. ये जो रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं जो अगर आप थोड़ा समझते हैं और थोड़ा उसको और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब टिकिंग. ओके. तो ये रिपोर्ट का टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस. इसे मैंने बोल्ड किया हुआ है, आप थोड़ा
इसे याद रखें। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस द नेम ऑफ, इस तरह की 4 रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है। ये इस पहली रिपोर्ट का टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में पता क्या चला है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। द फर्स्ट फाइंडिंग सेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इज हायर बाय 1.07 डिग्री सेल्सियस सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरिया। तो प्री इंडस्ट्रियल एरिया से अब तक में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.07 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ वार्मिंग, सबसे ज़्यादा वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। एरोसोल्स रिड्यूस दिस वार्मिंग बाय ऑलमोस्ट अ थर्ड। सो एरोसोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में। रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स एन इंक्रीज इन क्लाइमेट एक्सट्रीम्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि अच्छा बिन मौसम बरसात आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, हीट वेव्स आ रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, तो इस तरह के इवेंट्स बढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इस तरह के इवेंट्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वर्ल्ड इज सेट टू क्रॉस द 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट विद इन 10 to 15 ईयर्स, यानी अगले 10 से 15 सालों में हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के एवरेज टेम्परेचर की लिमिट को क्रॉस कर देंगे, जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे थे बहुत लंबे समय से, बट ये होने वाला है, हम नहीं बचा पाएंगे। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट हैज़ प्रेडिक्टेड। ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। आई वॉन्ट यू टू मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज फाइंडिंग्स, सम रियली इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग उन्होंने कहा कि ये जो हर गवर्नमेंट, हमारे देश की भी, नॉट जस्ट अदर कंट्रीज, आवर कंट्री ऑल्सो, सो वी हैव गिवन अ नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट सुना होगा आपने, अभी मोदी साहब की स्पीच में भी था कि रेलवे विल अचीव अ नेट जीरो टारगेट, ठीक है। तो नेट जीरो टारगेट का मतलब क्या होता है कि हमारे नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो यानी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो जाएगा ज़ीरो। तो ये डेडलाइन हर कंट्री ने अपनी बना रखी है कि हम 2030 तक नेट जीरो हो जाएंगे, हम 2050 तक जीरो हो जाएंगे, हम 2075 तक नेट जीरो हो जाएंगे। तो उसने कहा कि इससे कोई नेट जीरो से कोई जीरो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ द क्यूमुलेटिव एमिशन दैट मैटर्स, कि जब तक आप नेट जीरो होंगे तब तक आप कितना एमिशन कर चुके होंगे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एंड दैट इज़ वाई जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, कंट्रीज़ लाइक USA, जर्मनी, चाइना, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मोर देन देयर फेयर शेयर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये जो क्यूमुलेटिव एमिशन है, यानी अभी तक हमने जो एमिशन किया उसका एक बड़ा परसेंटेज डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, एंड दैट इज़ वाई दे शुड टेक अ डीप एमिशन कट, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल लेट से इट्स लाइक अ कार्बन बजट, कि ठीक है, अब इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर ही नहीं सकते। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो इसमें से कितना इंडिया कर सकता है, कितना डेवलपिंग कंट्रीज़ कर सकती है और कितना डेवलप्ड कंट्रीज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ तो अब कुछ नहीं कर सकती, डेवलप कंट्रीज शुड हैव टेक डीप कट्स एंड दे शुड रीच नेट जीरो वेल बिफोर 2050। 2050 से आगे का टाइमलाइन उनको लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर इससे ज़्यादा उन्होंने लिया तो या तो फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग ही रह जाएंगी, डेवलप कर नहीं पाएंगी, या फिर द वर्ल्ड विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज आया है दामिनी चोपड़ा साहब मैम का, द बिग अपॉर्चुनिटी। द बिग अपॉर्चुनिटी, इट टॉक्स अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये इट्स अ न्यू टर्म, हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे फेमिलियर हों, हो सकता है कुछ ना हो, तो विल टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेट मी एक्सप्लेन विथ सम नंबर्स, ठीक है। सो शी सेज दैट अकॉर्डिंग टू वेरियस इंटरनेशनल स्टडीज द मीडियन एज इन इंडिया वुड बी 28 ईयर्स, ठीक है। The median age in India would be 28 years by 2022-23. The same for China would be 37. The same for Europe will be 45. इसका मतलब क्या है? We will be younger than rest of the world. सबसे ज़्यादा युवा लोग, सबसे ज़्यादा यंग वर्क फोर्स कौन से देश में होगी? हमारे देश में। और इसका फ़ायदा क्या है? इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। क्यों? इसका फ़ायदा क्या है? जब आप यंग हैं तब आपके काम करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट। दूसरा, जब आप यंग है तो आपकी परचेजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, आपकी जेब में पैसा है। तीसरा, जब आप यंग हैं तब आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, राइट। अब आप सोचो, जब आप यंग हो तभी आपको पार्टी में जाना है, तभी आपको हायर एजुकेशन करना है, तभी आपको लेदर जैकेट चाहिए, तभी आपको गोवा ट्रिप चाहिए, राइट। तो ये सब कब होगा? जब आप यंग हैं। जब आप 60 के हो गए तो क्या चाहिए? डायबिटीज़ की गोली, संस्कार चैनल, राइट। तो
दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास है, बिकॉज एक बहुत बड़ी यूथ वर्कफोर्स होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ होगी, ठीक है। और यू नो वी आर नॉट इन द ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम्स, कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से इकोनॉमी हर जगह डाउन है, रिसेशन के चांसेस हैं। तो ऐसे में ये हमारी सिल्वर लाइनिंग बन सकती है, हमारे लिए एक एडवांटेज लेकर के आ सकती है। एंड दैट इज़ वाई रिकग्नाइजिंग दिस डिविडेंड, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि इंडिया के पास ये एडवांटेज है, तो इसको देखते हुए सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने कहा है कि इंडिया जो होगी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की 2030 तक। बाय 2030 हम दुनिया में तीसरे सबसे डेवलप्ड कंट्री होंगे, ठीक है। डॉयशे बैंक कहता है 2030 तक हमारी इकोनॉमी बढ़ के $7 ट्रिलियन तक हो जाएगी। $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी होगी, जो कि फिलहाल अभी $2 ट्रिलियन की है। सो these numbers have been forecasted recognizing the demographic dividend and the opportunity we have till 2030. But this will not come, okay, this will not be automatic. We will have to work towards it and we'll have to take care of certain things. For example, what is hampering or demographic dividend? ठीक है, demographic dividend तो है, अब आपके पास युवा हैं, बट वो युवा क्या दुनिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए तैयार हैं? तो यू विल हैव टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी का मतलब जेंडर इनइक्वालिटी भी है, इनइक्वालिटी का मतलब इनकम बेस्ड इनइक्वालिटी भी है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी भी है, अर्बन रूरल इनइक्वालिटी भी है। तो ये सारे चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा, तब जा कर के आपके देश की यूथ आपके लिए ग्रोथ लेकर आ पाएगी, ठीक है। आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको स्किल्स देने पड़ेंगे, मॉडर्न स्किल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको ऐसे सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ज़्यादा नौकरियों की गुंजाइश हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके देश का युवा नौकरी नहीं कर रहा है, अगर उसके पास काम नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? तो फिर वो क्राइम कर रहा है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपके देश के युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो अपॉर्चुनिटी बनाएगा। कैसे बनाएगा? या तो अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से। सो वील हैव टू वर्क टुवर्ड्स देम। These are certain things which we have to take care of. These are certain good articles which we saw in the Hindu. We have summed up this for you. Please go through them and we'll come again tomorrow with a new analysis. Till then, take care. Goodbye.